قیامت کا دن حق ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، بلکہ ایک جملہ اکثر بولا جاتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی۔ تو جان لیجئے خواتینوں حضرات، آج کی اس ویڈیو میں قیامت کی کچھ ایسی حیرت انگیز نشانیاں کہ جس سے ایک عام بندہ بھی قیامت کی تصدیق کرتا نظر آئے گا۔ مذہبی کتب میں قیامت کے آنے سے پہلے بہت ساری علامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قیامت کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی لکھا ہے، جس کا معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آخری نبی ہوں گے کہ جن کی امت قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیوں تک ماں کی نافرمانی کر لینے لگیں گے، دوستوں کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنے لگیں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے، اور جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد ہو جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ یہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں گے۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، علانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سماع اور آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگیں گے، امانت پہ خیانت شروع ہو جائے گی، امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ ایک لوگوں کی بجائے ذلیل اور غلطکار قسم لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی۔ ابھی موجودہ زمانے میں آپ خود دیکھیں گے یہ سب علامات پوری طرح موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت آنے سے پہلے ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمیت مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا، جیسے سانپ سکر کر اپنی بل کی طرف چلا جاتا ہے، ویسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرما برداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگران ہوگا، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانے میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے، بلکہ جب ہم نے یہ حدیث پاک پڑھی کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے تو ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی فکرہ یا بول ایسا بول دیں گے جو جس سے نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہ ہو کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں، بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکبر شریعت کو تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں گے کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زوم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مرد قریب قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت میں تو یہ ہے کہ یہ کفر یا کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ بحث ہو، اور یہ تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادہ تکرار ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کنایا میں طلاق ہو جائے اور انہیں پتہ بھی نہ ہو۔
ख्वातीनो हज़रात, सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इक़्तिदार गलत लोगों के हाथों में दे दिए जाएंगे। उलमा किराम की इस निशानी के मुतल्लिक़ भी कहते हैं कि आज दुनिया भर के मुबालक के हुक्मरानों की तरफ देखें तो साफ पता चलता है कि ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। सही बुखारी में एक और निशानी बताई गई है कि क़यामत से कबल लोग बुलंद तरीन इमारत बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। आज हम देखते हैं कि वही दौर शुरू हो चुका है। दुनिया भर में बुलंद वाला इमारतें खड़ी हो चुकी हैं और जिस मुल्क में सबसे बुलंद तरीन इमारत मौजूद हो वहाँ के हुक्मरान और शहरी उसे फख्र का सबब गिरद मानते हैं। इन जैसी दीगर कई निशानियों के मुतल्लिक़ भी उलमा का कहना है कि वो पूरी हो चुकी हैं। अब इमाम मेहदी का ज़हूर और क़यामत आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बतलाते हुए फरमाया कि उनको और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और फख्र करेंगे। लिहाजा शहर में इमारतों का ये मुकाबला आज अपने अरूज पर पहुंच गया है। दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बन गई है। साथ ही शहजादा वलीद बिन तलाल ने जदा में इससे भी बड़ी इमारत बनाने का ऐलान कर दिया है जो धराधर बनती चली जाएगी। अरब की इमारतें सारे जहां से ऊंची हो चुकी हैं। अर्ज करने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो पूरा हो चुका है। वो पेशन गोइयां पूरी हो चुकी हैं, अपने नुक्ताए कमाल को पहुंच चुकी हैं। अरब का सबसे ज्यादा तेल खरीदारी करने वाला अमेरिका ने सदाम को खत्म करके तेल की दौलत से 13 मुल्क गराक के कुएं पर कब्जा जमा लिया था और लाखों बैरल मुफ्त वसूल कर रहा है। तेल की गिरती मांगने तेल की कीमतों को निचली सतह पर पहुंचा दिया जिससे अरब ममालिक का शहजादा दौरे खात्मे के करीब है। सवाल पैदा होता है कि इस सवाल के बाद क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज़ व शदाब हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात और बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जदा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जैसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी का काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज बनती जा रही है। सऊदी अरब गंदम में सब पहले ही खुद तलीफ हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उगना शुरू हो चुका है। पहाड़ सरसब्ज शदाब हो गए हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होगी जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीज होगा, फसलें लहराएंगी। यूं ये पेशन गोई भी अपनी तकमीली मराहल से गुजरी जा रही है। जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर हदीस पे गौर करें तो मशरिक बस्ती की जवाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो खुद इंसारी की चाल समझ ना सके या बेरहमी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो या ना हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो सही होना ही था। हदीस के मुताबिक चनाचा हदीस पाक में इरशाद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अहले शाम तबाहियों बर्बादी का शिकार हो जाएंगी तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। मेरे मोहतरम नाज़रीन, याद रखें अहादीस मुबारक की रूह से शाम अहले शाम से उम्मते मुसलमान का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मते मुसलमान की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% बर्बाद साला खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और दाद दूसरे मुल्क की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी ही तादाद में जख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा शाम मुल्क मुकम्मल तबाही के बाद अब नजर की हालत में है। इस हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम की मौजूदा हालात है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशन गोई की अलामत जाहिर हो रही है। क्या हो चुकी है? याद रखें, मुल्क शाम के मुतल्लक इसराइल, रूसी, अमेरिका जो भी झूठे यहाँ बहाने बनाते हैं, लेकिन इन सब का असल हदफ जजीरा अरब है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से कि लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब मुबालिक में कदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद अंसारी कब्जा करना चाहते हैं और ये हो कर रहेगा। हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल चनाचा किताब फतन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। इस तरह क़यामत से मुतल्लिक़ ये बात भी हमें मिलती है कि क़यामत से पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े बड़े कज़ाब और दज्जाल आएंगे और हर एक नबूवत का
दावा करेगा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयां हुई है कि इराक का मशहूर दरिया फरात सोने का एक पहाड़ या सोने का एक खजाना जाहिर करेगा, जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनांचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने के पहाड़ या सोने के खजाने से मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें जाहिर हो चुकेंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सूरख आंधी आएगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धुंसा दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मसख हो जाएंगी। फिर कई निशानियां जाहिर होंगी, जैसे हार का धागा टूटने पर मुसलसल दाने गिरने लगते हैं। जमानाए वक़्त के घोड़ों को पार लगाए, जिस तेजी से गुजर रहा है उस तेजी से हम नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में बतरीज कुर्बे क़यामत की तरफ बढ़ रही हैं। ये निशानियां पूरी होकर क़यामत के करीब होने को वाजिया कर चुकी हैं और अब कुछ ही अलामात बाकी हैं। दज्जाल ऐसा खतरनाक और अजीम फितना है कि तमाम अंबिया ने अपनी उम्मतों को इसके मुतल्लिक आगाह किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को इसके बारे में इस कदर वाजिया बताया कि सहाबा किराम आंसुओं से तर आंखों के साथ दज्जाल के फितने से पनाह मांगा करते हैं। अहादीस की रोशनी में उलमा कराम ने दज्जाल के खरूज के कबल की जो निशानियां बतलाई हैं उनके मुताबिक घरों में नाच गाना आम हो जाएगा। दज्जाल के खरूज के बाद उसकी हैरान कुन ताकतों के बारे में मुख्तलिफ आरा है, मगर काबिल गौर और दिलचस्प बात यह है कि कुदरत की जानब से उसको अता की गई ताकतों के हवाले से यहूदी कौम बड़ी तेजी के साथ तजर्बात में मसरूफ है। रवायात में है कि वो बारिश बरसाने पर कुदरत रखता है। मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया जा चुका है। क़यामत की निशानियों के मुताबिक दज्जाल को हज़रत ईसा फलस्तीन के इलाके लुत्फ में कत्ल करेंगे। यहूदी इस मुकाम पर अपने मसीहा को फरार करवाने के लिए एयरपोर्ट तैयार कर चुके हैं। फिर दर्ज है, वाजिया रहे कि दज्जाल के माथे पर भी काफरे तहरीर होगा। क़यामत की एक निशानी में यहूदियों को पनाह देने वाले दरख्त गरगद का जिक्र भी है। आखिरी जंग में जब यहूदी मुसलमानों से छुपने के लिए पत्थरों दरख्तों की ओट लेंगे तो सवाए गरगद की तमाम चीजें मुसलमानों को अपने पीछे ये मौजूदगी का पता देंगी और मारूफ मुल्की और गैर मुल्की वेबसाइट्स के मुताबिक यहूदी गरगद के बागात तेजी से लगा रही हैं। आखिरी जमाना में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। और मकरम बताते हैं कि सऊदिया, मिस्र, तुर्की बाकी न रहेंगे, हर जगह कुफार के मुजालिम बाहर जाएंगे। उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब खलीजी ममालिक सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पर शौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर सऊदी अरब का छोटा सा शहर मदीना मुनव्वरा से 170 किलोमीटर के फासले पर है। उसके करीब तक यहूदी और नसारी पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उसकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे। उस वक्त हज़रत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरियाए तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हज़रत इमाम मेहदी के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। मशरिक वस्ती के हालात को, खुसूसन मुसलमान और सारी जिंदगी के हालात को देखते हुए साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाक की जानिब बढ़ रही है। फ्रांस में हमलों के बाद फ्रांस और यूरोप भी आलमी जंग की बात कर रहे हैं। सवाल पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़ेह नजर आ रहा है कि मशरिक वस्ती मुतवक्का है, जहाँ भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बढ़ती रंजिशें के हालात गज़वा हिंद की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक़्त आखिर के नजदीक आन पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को भेड़ियों में जगर कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापसी का रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी इस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर अल्लाह हमें पता नसीब करे तो मैं यानी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहन्नम की आग से आज़ाद करेगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम की तलाश करके इन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसम फरमाते हुए इरशाद किया,
बहुत मुश्किल आने वाला अदवार बड़े परफ्तन नजर आते हैं। और उसके मुतल्लक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा जिसमें फितने इतनी तेजी से आएंगे जैसे तस्वीर टूट जाने पर तस्वीर के दाने तेजी से जमीन की तरफ आती है। लिहाजा अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाइए। खातमुल नबियोन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में कताई क़यामत कायम होने में तकरीबन 2.25 सदियां बाकी हैं। अलबत्ता दौरे क़यामत का आगाज हो चुका है। ये तमाम दौरे फितना और फसाद फिर मामूर है। जंगो जदल और मुख्तलिफ ताकतों के मबैन खींचा तानी का तसलसल रहेगा। हक बातिल की इस मौर का आराई में खून इंसानी अर्जा होगी। नबी पर हक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ अफशां कर दिया, 1400 साल पहले बाखबर कर दिया। बस हम मुसलमानों ने ही होश के नाखुन लिए। दीगर मज़हब के मानने वाले तो सब तैयारी की हालात में हैं। यहूदी दजाल का इंतजार कर रही हैं, मसीही अपने तौयन तैयार हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का फिर से ज़हूर होगा, असर का वक्त होगा। दमिश्क की मस्जिद अमवा में लोग नमाज की तैयारी में मसरूफ होंगे और वो मस्जिद के मीनार से होते हुए यूं शहर में उतरेंगे। ये 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ लगाए हुए होंगे। ताज़ा किए हुए वजू का पानी कतरों की शक्ल में उनके बाजू से टपकेगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में वो नमाज अदा करेंगे। उनकी तदबीर में बहुत से मसीही लोग मुसलमानों के साथ आम मिलेंगे। मगर ख़वातीनो हज़रात जरा दम लीजिए। अल्लाह के नबी आखिरुल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी फरमाया था कि मेरा वो बेटा मेहदी जिसकी इमामत में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जैसे बुलंद मरतब नबी नमाज अदा करने पर फख्र करेंगे। उस मेहदी के ज़हूर पर सबसे पहले खुद मुसलमानों ही का एक लश्कर मुखासबत में जर दौड़ेगा और अल्लाह के हुक्म से जमीन अनबोज हो जाएगी। मगर कलेजा कट जाता है ये सुनकर, क्या मुसलमानों को कभी अक्लो सलीम अदा भी होगी या नहीं? हम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करते रहेंगे। जिन यहूदियों से अदावत है वो तो अपने हाँ का सबसे आला मजहबी मुकाम महज अपने नबी जनाब हारून अलैहिस्सलाम की आल के लिए ही मुख्तस रखते हैं। किसी और को वो इस मनसब पर फायज ही नहीं होने देते। तो फिर हम मुसलमानों को ये शौर क्यों हासिल है, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पाक को सरफराजियां तो खुद खुदा रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। वाहद नसीबी हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से गिरदोगरानी के मुरातकब तो होते ही हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात और हिकमतों के भी अलमा इनकारी हैं। अब कौन हमें समझाएंगे फरामीन नबी और अहकामात अहलिया इस सरीहा कलाते पुर्जी आखिर हमें कहीं का ना छोड़ेगी। समझने का वक्त अब है कि बाज अज़ा पछतावे की फुर्सत ना होगी। फिलहाल तो मुख्तसर सी मोहलत का दौर है। इसे गनीमत जानते हुए हमें अपना क़िबला दुरुस्त करना ही पड़ेगा। आखिर को होना तो वही है। यूं आखिर मुराद किए गए खुदाए रहीम करीम के जन्नतों में हमारा कोई ठिकाना ही ना हो। खुदा खौफी का हामिल मुसलमान ही असल मुसलमान है। इसके लिए कैद की नोईद है वरना अजाब है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर पुरफ्तन दौर में ईमान पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए।